Good morning, class. So we are going to start a new semester, semester 2, with lesson number 1. You have to buy the new books, and lesson number 1 is Medville, Gujarat. We will learn about Gujarat in the Medville period. So that is page number 1. Okay, let's start. So a man wrote about a village street playing a song on his Ravana. Means he was playing that board violin, जो violins होते हैं उसे play करते हुए he was singing a song. A man was singing a song while passing through a village. A group of small children was also roaming along with him. और उनके साथ कौन थे? कुछ small children का group था, children का group था जो उनके साथ उस गाने के साथ घूम रहे थे. He continued to sing the same song repeatedly, and the words of which were about a Patan village. And he was singing about Patan Patola, the material, you can say the sarees of Patan Patola are also famous. So he was singing a song about that village and that material Patola. So among the children there was one boy named Pratik. And he was when he returned back to his home, what he asked his grandfather because he wanted to know about what this Patola of Patan is. So his Pratik's grandfather actually had a lot of knowledge about historical concepts. Means here it is said wealth of historical anecdotes. Anecdotes means when you say a short stories or short incidents about a person or anything that is ranging from a historical period, then it is called anecdotes. So this Pratik's grandfather had a good hold on historical concepts. So while telling Pratik about this Patola, he informed him about the historical city, that is Ahimewar, Patan. Means when Pratik asked his grandfather about the village Patan and what this Patola is, at that time his grandfather told him about a village city, that is Ahimewar, Patan. So in the Medville age, that is 746 CE to 1304 CE, approximately it is about 560 years ago. मतलब आज से 560 years ago पहले की ये इंसिडेंट है. तो जब चावड़ा, सोलंकीज एंड वाघेला डायनेस्टीज, ये सारी जो डायनेस्टीज थी उन्होंने गुजरात पे रूल किया है. और उस टाइम पे जो गुजरात का कैपिटल था it was Ahimewar, Patan, and which was later known as, means जो पहले टाइम में it was known as Ahimepur Patan and then later it came to known as Ahimewar Patan. So currently it is known as Anandwar village, which is situated towards the west of Patan. जो Patan village है सिटी है उसमें जो वेस्ट की साइड पे जो आनंदवार है वही है Ahimewar Patan. Turn your page. So historical taxes मतलब historic की information जो हमें अवेलेबल है वो किससे है? जो टैक्सेस उस टाइम पे लिखे गए थे उससे. तो जो चावड़ा डायनेस्टी है उन्होंने पंचाशर पे रूल किया था. At that time जयशेखारी attended martyrdom in a war. martyrdom अटेंड करना मतलब यानी शहीद होना. His son Vanraj Chawla recaptured his father's kingdom. मतलब जो उनके फादर की जो राज्य था, जो किंगडम था, वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया था. उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिकैप्चर किया किसने? उनके सन वनराज चावला. So what he did, his main kingdom was placed near on the bank of river Saraswati. उन्होंने सरस्वती रिवर के पास में ही अपना मेन किंगडम एस्टैब्लिश किया and which was named as Ahimewar Patan. Why it was known as Ahimewar Patan? Because in reconstructing Ahimewar, Vanraj Chawla was helped by his friend Ahil. उनके एक फ्रेंड नेम्ड Ahil, उन्होंने उनकी हेल्प की थी इस सिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में या रीबिल्ड करने के लिए. That's why this place was named as Ahimewar Patan on the name of this friend. So the Chawla dynasty ने रूल किया गुजरात पे over 196
years तक. Okay, so that is how Chavda dynasty came to an end, and after that Solanki dynasty came to power. So during the rule of Solanki dynasty, Gujarat became prosperous. मतलब गुजरात एकदम क्या बोलते हैं खुशहाल डेवलपमेंट्स सब देखने लगी जब सोलंकी डायनेस्टी came in. So the Rajput era saw Ahilmar Patan. So this Ahilmar Patan emerged as a powerful kingdom. मतलब एक powerful kingdom की तरह Ahilmar Patan उभरा. So the king of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharth Jaisim, Umarpal, these all were the great rulers of this dynasty. And the famous scholar Shri also have written many incidents about the Solanki dynasty. Hemchandra Acharya was a patronist, and who was given more importance during the rule of Siddharth Jaisim, because at that time Gujarat used to give more importance to education administration's work. So during his reign, means during the time of Siddharth Jaisim's rule, Ahilmar Patan became the main center of administration, or you can say a main center of education, that is Vidya Dham. That's why it is also known as Vidya Dham. So on this proposal, means on the demand of this Siddharth Jaisim, Hemchandra Acharya has written a grammar book also, and this grammar book, once it was written, was tied on the back of an elephant. मतलब elephant की पीठ पे उस book को रख कर बांध कर प्रोसेशन को पूरे सिटी में घुमाया था. प्रोसेशन मतलब झांकी जैसा पूरे उसमें, यानी उतनी रिस्पेक्ट उस टाइम पे एजुकेशन को दी गई थी. So they were the first time जब गुजरात में ऐसा कुछ हुआ था और एक बुक को या एक एजुकेशन के किसी मटेरियल को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी. At this time ये जो राज्य था वो अमालगमेशन मतलब कॉम्बिनेशन था. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का, प्रॉस्पेरिटी मतलब हर चीज़ प्रॉस्परस होना, मतलब हम हर चीज़ को लक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं, मतलब वेल्थ से कनेक्ट करते हैं. एंड एजुकेशन मीन्स सरस्वती. सो ये जो प्लेस था वो क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन. द Ahilmar Patan. The kings of Solanki dynasty, जो Solanki dynasty के rulers थे, जो राजा थे, were powerful and a great kings. And however, 6 of these rulers, what they did, they left their throne. मतलब ऐसे 6 राजा हैं उनकी डायनेस्टी में जिन्होंने राज्य को छोड़कर they went convent, मतलब सेंट बन जाना, साधु बन जाना. और उसके बारे में more information will be available from the historian text. So turn your page. Ahilmar had not only dynamic kings, मतलब सिर्फ dynamic kings मतलब powerful great rulers के अलावा या तो फिर एजुकेशन के अलावा they also had what powerful and strong queens. मतलब रानियाँ भी उनकी उतनी ही strong mentality और powerful थी. जो क्वीन उदयमती थी उन्होंने स्टेप डॉल बनाया था ताकि उनके जो सर्विस मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए. इस स्टेप डॉल को बोला जाता है रानी की बात. एंड ये जो स्टेप डॉल है उसमें 7 लेवल्स ऑफ अनपैरेलल्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. और उन्होंने एक हर स्टोन ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली शेप करवाया था. जो सोलंकी एरा मतलब जो सोलंकी डायनेस्टी है उनके पावर और उनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो पकड़ थी उसको शो करता है. हमने सिद्धार्थ जयसिंह के बारे में प्रीवियस पैराग्राफ में देखा था. तो उनकी मदर भी जो थी क्वीन मीनल देवी, वो भी अपने फॉलोअर्स अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थी. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मालवा लेक्स कंस्ट्रक्ट की हैं, सहस्र लिंक लेक, मतलब 2-3 लेक्स उन्होंने अपने फॉलोअर्स अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए कंस्ट्रक्ट की थी. कहाँ पे? Ahilmar Patan. So this
associated with the name of brave, historic, or you can say heroic lady. तो मतलब सिर्फ अच्छे strong rulers नहीं, अच्छी administration, education नहीं, इससे भी more they are also known for brave and heroic ladies. So after the death of Ajaypal, his son was 2 years. मतलब जब जैसे राजा की डेथ होती है उनके सन नेक्स्ट राजा या नेक्स्ट किंग बन जाते हैं, पर when the son is too young, what happened? Queen Nanki Devi, she became the she took the whole responsibility of the kingdom. मतलब उन्होंने पूरे राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधों पर ले ली. और उसी सेम टाइम पर शहाबुद्दीन गोरी, हम देखा था गोरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी में उनका नाम है. तो जो शहाबुद्दीन गोरी थे उन्होंने डेजर्ट के थ्रू गुजरात में एंटर कर ही अटैक गुजरात. But what this Nanga Devi did, she led the army of Gujarat. गुजरात की आर्मी का नेतृत्व इन्होंने किया नायकी देवी ने, और उन्होंने पूरा बैटल लड़ा और वो सक्सेसफुल हुई और वो जीती भी. तो मतलब अगर हिस्ट्री ऑफ अहिलवाड़ पाटन हम देखते हैं तो सिर्फ वहाँ पे एक अच्छे राजा या अच्छे एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी ब्रेव और हीरोइक लेडीज का भी इम्पोर्टेंट रोल था. तो यानी राजपूत एज was not just known for the strong and powerful rulers, but they were also known for the strong and confident women. So after the Solanki dynasty, which power came in? The Waghela dynasty. So they also ruled over Gujarat, and the last emperor of this Waghela dynasty was Karandev Waghela, who lost in the war with अलाउद्दीन खिलजी. मतलब उन्होंने वो थे लास्ट एम्परर जो वाघेला डायनेस्टी के, उन्होंने जब युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ही लॉस्ट इन दैट वॉर. एंड फ्रॉम दैट जो अहिलवाड़ पाटन था, जो पावर था गुजरात का, दैट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ मुगल एम्पायर. ओके, सो तब तक जो राजपूत एज था, राजपूत एरा था, that came to an end, and from there started the Mughal era, or you can say Sultan's period. So later for a period of time, Ahilwad Patan remained the capital of Gujarat just for a namesake. Namesake मतलब सिर्फ नाम के लिए ही गुजरात का कैपिटल Ahilwad Patan रहा, but majorly they were not using Ahilwad Patan as the कैपिटल. वो इम्पोर्टेंस उसे नहीं दी गई. तो ड्यूरिंग द सुल्तान स्टेज, जो सल्तनत की एरा था, उसमें अहमदीन शाह ने क्या एस्टैब्लिश किया? अहमदाबाद इन 1411 CE. सो उसके बाद जो पाटन कैपिटल था गुजरात का कैपिटल, उससे वो कन्वर्ट होकर कहाँ चला गया? अहमदाबाद. एंड जो पाटन था वो सिर्फ एक हेडक्वार्टर्स बन गया जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज होता था. Sultans ruled over Gujarat through 15th century until the end of 16th century. मतलब 15th century के beginning से लेकर 16th century के end तक सुल्तान रूल या सल्तनत रूल, you can say मुगल रूल रहा. और उस एरा में important sultans थे like Ahmad Shah, Muhammad Begum and Mushraf Shah ruled over गुजरात. मतलब अलग अलग सुल्तान गुजरात पर रूल करते रहे. यानी 17th सेंचुरी का जो बिगिनिंग आया, तो गुजरात की जो सल्तनत एरा से लेकर वो क्या कन्वर्ट हो गया? मुगल डायनेस्टी या मुगल लोगों के रूप में चला गया. सो इस तरह से गुजरात को अलग अलग डायनेस्टीज में रूल किया है. सो द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सोलंकी एरा, जो सोलंकी एरा था तब सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था किंग को, और वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो किंग के मिनिस्टर्स के जो ग्रुप होते हैं वो हैंडल करते हैं. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता है, बहुत सारे मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता है वो होता है महात्मा. हु लुक्ड आफ्टर विच डिपार्टमेंट? फिनेंस डिपार्टमेंट को जो हैंडल करता वो था सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, दैट इज महात्मा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? उसे हम बोलते हैं मंडल. सो द कैपिटल, जो राज्य
किंगडम का जो कैपिटल है उसे बैंक ऑफ सरस्वती के साइड पर फॉर्म किया था। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सरस्वती मंडल। मतलब जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स हैं उसे हम मंडल बोलेंगे और वो डिपार्टमेंट्स को मंडल बोलेंगे। और उस मंडल में जो सरस्वती रिवर के पास में जो इम्पोर्टेंट सिटी फॉर्म की थी वो सरस्वती मंडल। एंड सब सेक्शन थे इस मंडल्स की, उन्हें हम पार्ट बोलते हैं। एंड दिस पार्ट्स वर इंक्लूडेड, हम जब उसमें इंक्लूड करते हैं विलेजेस को। सो वी हैव डिफरेंट मंडल्स लाइक कच्छ मंडल, सहस्त्र मंडल, खेता मंडल, लख मंडल एक्सेट्रा दैट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोलंकी एरा। So architecture and culture. So at that time when this Solanki era was, the rule was there in Gujarat. At that time, Gujarat people used to follow Shaivism or Vaishnavism. So the people who followed Shaivism had Somnath temple as their prime center. उनका प्राइम केंद्र जो होता है टेम्पल वो था सोमनाथ। और वैष्णव जो थे उनके लिए था द्वारका। सो उस टाइम पे जो बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस था गुजरात पे मेडिकल फील्ड में वो लेस था, बट व्हाट गेव द पावर, जैनिज्म में उस टाइम पे ज़्यादा लोग बिलीव करते थे। उस बिलीव की वजह से देयर वर मैनी मैग्निफिकेंट मतलब ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। So this period was also saw the progress of architecture, sculptures and painting. मतलब इस पीरियड में और भी क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो पेंटिंग्स थी, जो आर्किटेक्चर वर्क्स थी, जो कंस्ट्रक्शंस थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। So the architecture of this time was established by Rajasthani style of temple carving। मतलब जो टेम्पल कार्विंग, जो टेम्पल में आर्किटेक्चर यूज हुआ वो इन्फ्लुएंस था राजस्थानी स्टाइल से। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, विमल शाहजी टेम्पल ऑफ आबू, दिस बोथ वर कंस्ट्रक्टेड इन 11th century। रुद्र महालय टेम्पल which was the construction of Somnath temple and this all happened during 12th century। and in the 13th century Dilwara temple of Mount Abu was constructed। So in Gujarat not just only temple architecture but जो torrents हैं, gateways हैं, forts हैं, lakes हैं, इन सभी construction भी equally important थी। Margins were drawn over along the four sides of this 2 to 3 feet long and 2 to 3 inch wide leaves, and within that limited space writings or drawings were executed। मतलब जो प्लम लीव्स पे तक पात्रास पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, मतलब हिस्टोरियन चीज़ों के बारे में जो लीव्स पे लिखा जाता है वो भी फेमस था। और उसमें एक मार्जिन होता था जो 2 to 3 फीट का लेंथ में रखते थे और 2 to 3 इंचेस की विड्थ रखते थे। ओके दैट्स इट। हाँ यानी मतलब लिटरेसी वर्क हो या कंस्ट्रक्शन हो, आर्किटेक्चर हो, दैट टाइम गुजरात वाज फेमस। एंड एट दैट टाइम द मेन सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये सारे रूल्स कहाँ से पास होते थे, बस पास फ्रॉम अहमदाबाद। एंड बिकॉज ड्यूरिंग द सल्तनत रेज or you can say during Mughal Empire period, both is considered Ahmedabad as a center of administration। So there were books that were written in Persian languages at this time, many writings were established। मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें राइटिंग्स जो हिस्टोरियन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं, बहुत सारी राइटिंग्स भी उस टाइम पे लिखी गई थी। मॉस्क, फेमस मॉस्क बने थे जो सुल्तान मुगल एरा में। सिद्दी सैयद गिल जो अहमदाबाद का फेमस है, दिस ऑल वर बिल्डेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड जो मेडविल एज था वो 560 ईयर्स का। वो गुजरात वॉज रूल्ड ओवर बाय राजपूत एंड लेटर बाय द सुल्तान एरा एंड देन मुगल एम्परर्स। So this is evidence of architecture, structure and literacy work of that period। मतलब जैसे अलग अलग डायनेस्टीज और अलग अलग लोगों का अलग अलग एरा का जो फॉर्मेशन था, अमालगमेशन था,
So once again read the lesson completely. If there is any word or any term that you don't understand, make sure that you ask me, but make sure that you read the lesson completely and buy this new book. This is our semester 2 new textbook, and which has the lesson number 1 Bible Gujarat. So I hope you have understood this lesson.